امی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی سجاد بھائی سے کہہ رہی تھی کہ لڑکی والے مان گئے ہیں، بس 1 ہفتے یا 10 دن میں تمہاری بیوی آ کر گھر لے آؤں گی۔ یہ نہ ہو کہ خاندان سے کوئی تمہاری بیماری لڑکی والوں کو بتا دے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بھائی بہت خوش تھا۔ اس نے اٹھ کر امی کا ماتھا چوما اور بولا، مجھے آپ سے اسی تیزی کی امید تھی۔ امی مسکرا کر کہنے لگی، تم اس گھر کے کماؤ بیٹے ہو، تمہارے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا نا، تم کون سا فیصل کی طرح گھر میں پڑے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو۔ امی نے آخری بات میری طرف دیکھ کر ہنس کر کہا۔ ان کے لہجے میں کسی قسم کا کوئی طنز نہیں تھا۔ وہ اکثر میرے ساتھ ایسا مذاق کرتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ تم جلدی سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر کی ذمہ داری میں اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاؤ۔ امی اور بھائی ہنس رہے تھے مگر میں مسکرا بھی نہ سکا۔ جیسے ہی بھائی گھر سے نکلا میں جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں بولا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی کی شادی مگر کس سے؟ امی نے ایک تصویر اٹھا کر میرے سامنے لہرا دی۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کے لیے ہیرا ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ میں نے جب تصویر دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی سچ میں بہت خوبصورت تھی اور تھی بھی کم عمر۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ میں بولا، امی آپ کو علم ہے نا بھائی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، وہ ساری رات سو نہیں سکتے، ان کے کمرے سے رات بھر چیخنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، ان کی دیوان کبھی کبھار اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ خود کو بھی اذیت دینے سے باز نہیں رہتے۔ ایسے میں آپ کیسے ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر لا سکتی ہیں؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ امی کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے۔ وہ کہنے لگی، فیصل میں ہر چیز سے واقف ہوں مگر تم بھی تو یہ سوچو نا کہ میں نے اپنے بیٹے کے علاج میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اپنے سونے کے زیورات بھی بیچ دیے۔ نتیجہ کیا ملا؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ سجاد کو عمر بھر دوائیاں کھانی پڑیں گی اور اکثر ایسا بھی ہوا کرے گا کہ اس کی دیوانگی دوائیوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ سجاد کی بیماری ڈاکٹر علاج سے تو ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک اور حل نکالا ہے۔ محلے کی ایک عورت بتا رہی تھی کہ جس مرد کی دیوانگی ختم نہ ہو رہی ہو اس کے لیے بیوی لے آؤ، مرد کچھ دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی تو تم دیکھو کہ سجاد اپنی بیوی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، وہ کماتا ہے، اگر وہ دیوانہ ہوتا ہے تو کام پر کیسے جاتا؟ اس کو تو کوئی اور ہی مسئلہ ہے جو اس کی بیوی ہی دور کر دے گی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں بولا، امی آپ محلے کی گنوار عورتوں کی باتوں میں مت آئیے، بھائی شادی کے بعد بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اس لڑکی کی تصویر کو تو دیکھیں، اتنی حسین ہے، اس کے چہرے پر کس قدر معصومیت ہے، آپ اس کے ساتھ اس قدر ظلم مت کریں، اپنے پاگل بیٹے کے لیے اس کی زندگی تباہ مت کریں۔ میری بات سن کر امی کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، فیصل تم اپنے بھائی پر ایک غیر لڑکی کو فوقیت دے رہے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم خود اس لڑکی پر فدا ہو گئے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں بولا، امی خدا کو مانے، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اگر بھائی نے اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچا دیا یا خدا نخواستہ اس کی جان لے لی تو آپ کیا کریں گے؟ امی کہنے لگی، تو میں اپنے سجاد کے لیے دوسری لڑکی بھی آؤں گی۔ امی کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے یہ بات کیسے کر دی تھی؟ خیر امی تو بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ میں اپنی ہونے والی بھابھی کے مستقبل کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن بارات جانی تھی۔ امی سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی ٹھان کر بیٹھ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا بھائی کو کہتا ہوں، شاید انہیں میری بات کی باریکی سمجھ آ جائے۔ میں بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چھت پر لے گیا۔ بھائی کہنے لگا، کیا بات ہے فیصل، کوئی ضروری بات ہے؟ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھائی آپ نے میری بات پر عمل سننا ہے، مجھے یہ بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ شادی کے قابل ہیں؟ میری بات سن کر بھائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، کیوں تم مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں میں نامرد لگتا ہوں؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی، دراصل میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا علاج ہو جاتا، آپ مکمل طور پر صحت مند ہو جاتے، آپ کی شادی پھر ہو جاتی۔ بھائی کہنے لگا، فیصل آج میری شادی کا دن ہے، میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، مگر دھیان رکھنا آج کے بعد میرے سامنے ایسی کوئی بھی بات مت کرنا، یہ نہ ہو کہ میں لحاظ بھول جاؤں۔ میں بھائی کا غصہ دیکھ کر چپ کر گیا تھا اور یہ دنیا ہے تو اس لیے مجھے اپنے بھائی کی بارات میں جانا ہی پڑا۔
वैसे तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का हिस्सा बनूं। हम बारात लेकर गए तो हमारा बड़ा इस्तकबाल हुआ और फिर महज 2 घंटे में ही हम मोम की गुड़िया को ब्याह कर ले आए। मेरी भाभी बहुत नाजुक थी और कमज़ोर सी लड़की थी। वह स्टेज पर बैठी शर्मा रही थी। जब मैंने ये सोच कर परेशान हो रहा था कि मेरी भाभी भाई का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, भाभी को उनके कमरे में बिठा दिया गया। भाई भी अपने कमरे में चले गए तो मम्मी के पास जाकर बैठ गया और बोला, अम्मी भाई पर अगर दीवानगी फिर से छा जाए तो भाभी को उनके कमरे से ले आइएगा, क्योंकि सुबह वलीमा है। भाभी तो सबको बता देंगे कि मेरा शौहर दीवाना है। अम्मी ने सर हिला दिया और बोली, तो फिक्र ना कर, मैं देख लूँगी। अम्मी की बात सुनकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने कमरे में गया ताकि थोड़ा सा सो सकूं, मगर नींद नहीं आई। दोबारा सहन में आ गया। मैं वॉक करने लगा। दरअसल मैं ऐसी इंतज़ार में था कि अगर भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी तो मैं भाभी की जान छुड़वा लूँगा। सारी रात यूं ही गुजर गई। भाई के कमरे में बड़ा सुकून सा था, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने कमरे में आ गया। ये बात मेरे और अल्लाह के दरमियान की थी कि मैं सारी रात भाई के कमरे का पहरा देता रहा। अगर मैं किसी और को कुछ बताता तो लोग 100 तरह की बातें करते मेरे बारे में, मगर मुझे किसी और की कोई परवाह थी ही नहीं। मैं तो शुरू से ही लोगों की मदद करने का आदी था। अपने गली मोहल्ले में मेरी बड़ी नेक नामी थी। अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत होती तो लोग सबसे पहले मेरा नाम ही लेते। फिर चाहे अगर किसी बुजुर्ग को मेडिकल स्टोर से दवा मंगवानी हो या फिर किसी बच्चे को दुकान से कुछ दिलाना होता, मोहल्ले की आंटियाँ भी सब्जी वगैरह मंगवाने के लिए मुझे ही पुकारती थी। मैं सबके काम आता था और इस तरह मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल जाता था। भला ऐसी ज़िंदगी किसी ने क्या करनी जो किसी के काम ही ना आ सके। खैर, सुबह हुई तो घर में चहल पहल होने लगी। वलीमे पर जाने के लिए सभी तैयारियों में मसरूफ़ थे। मेरी भी आँख शोर शराबे से खुल गई। मैं कमरे से बाहर निकला तो सबसे पहले अम्मी के पास गया। मैं बोला, अम्मी भाभी कहाँ हैं? अम्मी ने मेरा माथा चूमा। वो कहने लगी, मेरे बच्चे तू क्यों इतनी फिक्र करता है? मैं ना कहती थी कि तुम्हारे भाई की सारी बीमारी शादी के बाद रुखसत हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। तेरी भाभी तो बड़ी खुश थी और भाई भी। मैं अम्मी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, चले ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी काम में मसरूफ़ हो गया था। तब अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, फैसल अपनी भाभी को पार्लर तक ले जाओ। मैं बोला, जी अम्मी मैं ले जाता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली और भाभी को पार्लर ले गया। रास्ते में मैंने उनके चेहरे को जांचने की कोशिश की तो वे पूरे सुकून लग रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत की और बोली, भाभी आपको मेरे भैया कैसे लगे? भाभी ने मेरी जानिब मुस्कुरा कर देखा और बोली, वे बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैंने महसूस किया कि ये आंटी की तरबियत ही है जो आप दोनों बेटी की रगों में दौड़ रही है। भाभी का अच्छा जवाब सुनकर मुझे सुकून मिल गया। मैं भाभी को छोड़कर वापस आ गया। फिर 2 घंटे के बाद जब उनका मेकअप हो गया तो भाई उन्हें वापस लेकर आ गए। फिर हम सब मिलकर होटल गए। होटल में मैंने महसूस किया कि भाई की तबीयत कुछ बिगड़ रही है। उन्हें बार बार पसीना आ रहा है। उनकी हालत बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे दौरे पड़ने पर होती है। मैं बड़ा घबरा गया। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा लगे, इसलिए मैंने वलीमे का फंक्शन ख़त्म करवाया और सबको घर वापस ले गया। अम्मी का मूड ऑफ हो गया था। वे कहने लगी, तुम कब से इतने बड़े हो गए कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने वलीमे का फंक्शन ख़त्म करवा दिया? मैं बोला, अम्मी भाई की तबीयत बिगड़ने लगी थी। घर आकर उन्हें दौड़ा पड़ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर सबके सामने तो वो चीखने लगते तो सोचे हम लोगों को क्या वजाहत देते। मेरी अम्मी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। कहने लगी, बहू को आए दिन ही कितने दिन थे, अगर उसे दौरा पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? उसकी बीवी को मैं बोला, अम्मी मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आपने क्या जवाब देना है और क्या नहीं। बस भाई का ख्याल रखिए, कहीं वह भाभी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सारी उम्र जेल में भुगतना पड़ेगा। अम्मी मजीद परेशान हो गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। मुझे अम्मी पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उन्हें भी था कि अपने बेटा ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अपने बेटे की खुशियों के लिए किसी दूसरी लड़की की खुशियों को कत्ल कर दिया। मैंने अपना लिबास तब्दील किया और कमरे में खिड़की के पास आकर बैठ गया, मगर फिर भी सुकून ना आया। तो मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगा। मुझे भाभी को हर हाल में भाई से बचाना था। भाई पर भी हैज़न तारी होता था तो फिर वे किसी को नहीं देखते थे। एक बार तो उन्होंने अम्मी के मुंह पर भी थप्पड़ मार दिया था। भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो तो खुद पर काबू ही नहीं पाते थे। खैर, सारी रात यूं ही गुजर गई थी, मगर भाई के कमरे से कोई मारपीट की आवाज़ नहीं आई, बल्कि उन दोनों की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। बहुत हल्की आवाज़ में सरगोशियाँ थी जिनको मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे
ओके का सिग्नल मिल गया था तो मैं वापस कमरे में आ गया। सुबह जब मैं नाश्ता करने किचन में गया तो अम्मी ने मुझे कान से पकड़ लिया। वो कहने लगी, तुमने मुझसे कहा था कि भाई को दौरा पड़ने वाला है, इसलिए मैंने वलीमा ख़त्म करवा दिया। अब तुम बताओ मुझे कौन सा दौरा पड़ा। उसे अम्मी बेतहाशा गुस्से में लग रही थी। उनका गुस्सा कम करने के लिए मैंने बोला, अम्मी लगता है आपकी बात सच साबित हो गई। भाई अब ठीक हो गए हैं, जब से दुल्हन उनकी ज़िंदगी में आई है वे बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं। ये बात सुनकर अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वे कहने लगी, फैसल अब देखना हमारे घर में खुशियों का दौर होगा। तुम अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ कर ले आऊँगी। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे भी भाई की तरफ से इत्मीनान हो गया था। उनकी ज़ात में बड़ा ठहराव आ गया था। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर महज 4 दिनों के बाद ही एक रात भाभी मेरे कमरे में दाखिल हो गई। उन्होंने मुझे झिंझोड़ कर उठा डाला और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। भाभी को अपनी रूबरू देखकर मैं परेशान हो गया। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बोला, भाभी क्या बात है, आप अचानक यहाँ पर? तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, खुदारा मुझे अपने भाई से बचा लो, उसे दौरा पड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया था। मैं बोला, भाभी आप फिक्र ना करें, मैं अभी अम्मी को बुला कर लाता हूँ, आप उनके सामने ये बात करें। लेकिन भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वह कहने लगी, नहीं नहीं, तुम किसी को मत बुलाओ, बस आज रात मुझे अपने कमरे में ठहरने दो। मैं बोली, भाभी ये मुमकिन नहीं है, आप मेरे कमरे में नहीं रह सकती। हम दोनों अभी ऊंची ऊंची आवाज़ में ही बोल रहे थे कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मी कमरे में आ गई। भाभी ने जब अम्मी को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगी और अम्मी के गले लग गई। कहने लगी, आंटी इसने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं तो बस इतना ही कहने आई थी कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मगर इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इसकी मिन्नतें की तो मुझे जाने दो, मगर इसने मुझे एक नहीं सुनी। ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग भंग से उड़ गया। मैं बोला, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, खुदा का खौफ करें, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन भाभी ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। अब तक तो हमारे शोहर के भाई जो चंद मेहमान हमारे घर में रह गए थे, अपने अपने कमरों से निकलकर मेरे कमरे में आ गए। मेरी ज़ात का तमाशा बन चुका था और भाभी इस कदर रो रही थी कि सबने ही उनकी बात पर यकीन किया और मेरी बात किसी ने न मानी। अम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, जब से तुमने अपनी भाभी की तस्वीर देखी तुम इसके लिए पागल ही हो जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम पढ़ लिख लो, तुम्हारे लिए भी ऐसी ही बीवी ले आऊंगी, लेकिन तुम जानवरों से भी बदतर निकले जो अपनी भाभी पर नज़र रख कर बैठे हुए थे। मैं बोला, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। अम्मी कहने लगी, मुझे ये बताओ आज तक किस औरत ने इस तरह की झूठ बात की है? जाहिर है तुमने ही कुछ किया है तो उसने कहा है ना, नहीं तो इस बेचारे को क्या शौक पड़ा है अपनी इज्जत का तमाशा बनाने का। अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं सड़क पर आ गया। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा। मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और इन पेपरों के बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन अम्मी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया तो मेरा मुस्तकबिल ही तारीख हो गया, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरा रोल नंबर, स्लिप और कई चीज़ें मेरे पेपर देने के लिए ज़रूरी होती हैं वे घर में ही पड़ी रह गई थी। मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया। मैंने आंटी को सारी सूरत हाल बताई तो वह कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे घर से जाकर तुम्हारी चीज़ें ले आऊँगी। मैंने नाम में सर हिला दिया। मैं बोला, आप मेरे घर मत जाइएगा, मैंने अब मुस्तकबिल बनाकर करना भी क्या है। मुझ पर तो इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया गया और सबसे दुख और तकलीफ़ की बात तो यह है कि मेरी माँ ने भी इस पर यकीन कर लिया। मुझे अब अपना मुस्तकबिल नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अंधेरों में ज़िंदगी गुजार दूंगा। आंटी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। आखिर ये हुआ कि मेरे एग्ज़ाम गुजर गए। मैं हर वक्त गुस्से में रहता था और चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मैं तो बहुत ही अच्छी नौकरी की तलाश में था। मुझे लगा था कि मेरे पेपर्स हो जाएंगे तो मुझे ज़बरदस्त किस्म की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे सपने तबाह हो गए थे। मैं ये सोच कर हैरान होता रहता था कि आखिर भाभी ने मेरे साथ किस किस्म की दुश्मनी निभाई है, उसको हो क्या गया है, उसने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ आखिर कैसे बोल दिया। उसके दिमाग में आखिर ऐसा क्या समाया था कि उसने अपनी खैर
खवा पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। खैर अब जो होना था वो हो गया था, मैं बुरा नहीं था, लेकिन मुझे बुरा बना दिया गया था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी भाभी से बदला लेकर आऊँगा और उस बदले के लिए मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रात के पिछले पहर भाभी के कमरे में जाऊँगा और फिर भाई को उनकी असलियत के बारे में बताऊँगा और उनसे कहूँगा कि देख लें, आपकी बीवी ने मेरे साथ ये सब किया है। भाई यकीनन मेरी बात पर यकीन कर लेते और अपनी बीवी को सख्त सज़ा देते। मैं यही सोचकर अपने घर गया था। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं घर की हर खिड़की दरवाजे से वाकिफ़ था और मुझे पता था भाई के कमरे की एक खिड़की बाहर की जानिब भी खुलती है, जो कि अक्सर कुंडी के बगैर ही बंद होती है, क्योंकि भाई खिड़कियों को कुंडी नहीं लगाया करते थे, उनको वहशत होती थी। आज रात मैंने अंदर जाने का फ़ैसला किया। मैंने खिड़की को थोड़ा धकेला तो वो पूरी खुलती चली गई और मैं उस खिड़की के अंदर देखकर तो दंग ही रह गया। मेरा भाई बेड पर लेटा हुआ सो रहा था, जबकि मेरी भाभी एक गैर मर्द की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और बातें कर रही थी। ये मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। भाभी ने जब मुझे देखा तो वे जल्दी से उठ बैठी और उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी और कहा कि तुम फिर से मेरे कमरे में आ गए, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है? तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे, जो रात गए इस वक्त मेरे कमरे में आए हो? मासूम सी नज़र आने वाली लड़की बड़ी तेज़ थी और अपने गुनाह पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि मैंने उसे उस लड़के के साथ देख लिया है। वे मुझे ही बातें सुनाने लगी। इससे पहले कि वह लड़का कमरे से भाग जाता, मैंने उसको गर्दन से दबोच लिया। मैंने जल्दी से अम्मी के नंबर पर फ़ोन किया। मेरी कॉल दूसरी ही बेल पर अटेंड कर ली गई। जाहिर सी बात थी, रात के इस पहर फ़ोन करता तो उन्हें परेशानी तो होती। आखिर बैठा फ़ोन क्यों कर रहा है? मैं बोला, अम्मी जल्दी से भाई के कमरे में आए। अम्मी तो नंगे पाँव ही दौड़कर भाई के कमरे में आ गई। अम्मी मुझे और उस लड़के को देखकर हैरान रह गई। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। तो मैं बोला, अम्मी मैंने सोचा था कि मैं भाई को भाभी की सारी करतूत बता दूंगा कि उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए मैं रात की इस पहर पिछली खिड़की से आया, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ था और आपका सामना नहीं करना चाहता था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी को इस लड़के के साथ देखा, जबकि भाई तो गहरी नींद सो रहा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भाई अभी तक उठा भी नहीं। अम्मी दौड़कर भाई की तरफ गई और कहने लगी, उठो मेरा बेटा उठो, तुम क्यों नहीं उठ रहे? लेकिन भाई के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। अम्मी ने पूरा जग भाई के मुंह पर उड़ेल दिया, लेकिन भाई अभी तक सो रहे थे। मम्मी खौफजदा होकर उनकी नस टटोली तो वह भी चल रही थी। मैं भाभी पर चिल्लाया और बोला, तुम दोनों ने मेरे भाई को क्या किया है? तो वो लड़का कहने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है इसने किया है, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो मैं बोला, नहीं नहीं, तुम्हें कैसे जाने दो, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूँगा। तुम रात के इस पहर हमारे घर में दाखिल हुए कैसे? तो वो लड़का झट से कहने लगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, आपकी भाभी ने मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, कई दिन से कई बार मुझे कॉल करती थी। आज रात तुमने लाजमी मेरे घर आना है, मैं अपने शौहर को नींद की दवा दे दूंगी, इसी ने बुलाया है मुझे, सारा कसूर इसी का है, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। ये बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया, जबकि वह मुझे चकमा दे गया था। उसने अचानक से मेरा हाथ झटका, मैं संभल भी नहीं पाया और वह लड़का खिड़की के रास्ते से भागकर बाहर निकल गया। पहले मैंने भी उसके पीछे भागने की कोशिश की तो अम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। अम्मी कहने लगी, लड़का कसूरवार नहीं है, कसूरवार तुम्हारी ये भाभी है जो लड़के की कमरे में बुलाती थी। तुम अपने भाई को जगाओ ताकि अपनी बीवी से तफ्तीश करे, ये सब कुछ यहाँ हो क्या रहा है? इतनी देर में मेरा भाई भी उठ बैठा। मैं बोला, भाई आप इतनी गहरी नींद क्यों सो रहे थे? भाई मुझे और अम्मी को अपने कमरे में देखकर परेशान हो गया। वो कहने लगा, क्या हुआ है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो अम्मी कहने लगी, तेरे फजल भाई ने तेरी बीवी को अपने यार के साथ पकड़ा है, इससे पूछो। भाई के चेहरे पर गुस्सा आया था, वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भाभी को बालों से पकड़ लिया और बोले, मुझे बताओ कि मेरे कमरे में क्या हो रहा था? भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वह भी हमारी गली का ही था। मैंने उससे बड़ी बार कहा कि मेरा रिश्ता ले आओ, तो वह कहता था कि मेरी अम्मी रिश्ता लाने पर मंजूर नहीं होती, क्योंकि मैं कामकाज नहीं करता और मैं बेरोज़गार हूँ। ऐसे में मेरा रिश्ता आपके घर से आ गया। अम्मी ने मुझे बताया कि सज्जाद एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है और फिर उनके घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। यही बात मैंने अपने प्यार को बताई।
तो वह कहने लगा तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मुझे भी तो अभी सेटल होने में बहुत अरसा लग जाएगा। मुझे इल्म है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें ज़्यादा अरसा घर में नहीं बिठा पाएंगे, इसलिए तुम सज्जाद के साथ शादी करो और फिर हम शादी के बाद भी मिलते रहा करेंगे। तुम्हारा खर्चा पानी तुम्हारा शौहर उठाएगा और उसके पैसों पर तुम ऐश करोगी, जबकि मोहब्बत तुम मेरी ही रहोगी। मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। मुझे उवैस का ये प्लान बहुत अच्छा लगा था, और बाद में ये भी पता चल गया कि मेरे होने वाले शौहर को दौरे पड़ते हैं और वह दीवाना है। तो मैंने सोचा कि एक दीवाना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं शादी करके अपनी मज़े करती हूँ और फिर मैं अपने दोस्त को घर पर बुला लिया करूँगी। मुझे उवैस नींद की गोलियां ला कर देता था। फिर वह कहने लगा कि हर रात एक गोली अपने शौहर को पानी में घोल कर पिला दिया करना, वो सो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने ऐसा ही किया। मैं शादी की पहली रात से लेकर अब तक अपने शौहर की नींद की गोलियां देती रहती। पहली चंद रात में अपने शौहर को गोली देती थी तो वह आराम से सो जाता था, लेकिन फिर भी उवैस को घर में बुला नहीं पाती थी, क्योंकि फैसल तो पूरी पूरी रात घर में फिरता रहता था। मेरे कमरे के दरवाजे के सामने तुम चहल कदमी करते रहते थे, और तुम्हारी वजह से मेरा उवैस मुझसे दूर था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम्हें घर से निकलवाना होगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया। रात को मैं तुम्हारे कमरे में आ गई और इल्ज़ाम लगा दिया तुम पर कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से निकलवाने में कामयाब हो चुकी थी। अम्मी तो तुम लोगों की बूढ़ी हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ लेती। इसलिए रात को मैं सज्जाद को नींद की गोलियां दे देती और वे सो जाते तो मैं उवैस को बुला लेती। ये सब बातें सुनकर तो मैं तंग रह गया था, जबकि भाई भी परेशान था। वो कहने लगा जब से मेरी शादी हुई है मैं हर रात बहुत जल्दी सोने लगा था। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि इस सब के पीछे नींद की गोलियां हैं। हर सुबह मेरी बीवी उठकर मुझसे कहती कि आप तो पूरी पूरी रात सोए रहते हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक ऐसे मर्द से होगी जिसकी नींद ही पूरी नहीं होगी। मुझे तो आपकी ज़रूरत है। मेरी बीवी ऐसी बातें करती तो मैं इससे दब जाता था, और मैं हर वक्त इसके आगे पीछे फिरता रहता था कि मेरी कमज़ोरी किसी को ना बता दे। अब पता चला ये सब कुछ इसी का किया धरा है। मेरे भाई ने खड़े खड़े ही भाभी को तलाक दे दिया, जबकि अम्मी ने मुझसे माफ़ी मांग ली कि मैंने पढ़ाई लड़की पर भरोसा किया और अपनी सगी औलाद पर भरोसा ना कर सकी। मैंने अम्मी को माफ़ कर दिया। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम दोबारा घर आ जाओ, तो मैं घर में रहने लगा। अम्मी ने भी वादा किया कि अब जब तक सज्जाद मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाएगा मैं इसकी दोबारा शादी नहीं करवाऊंगी। मेरी भाभी शक्ल की बहुत मासूम थी, मगर उसके करतूत बहुत बुरे थे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। खैर अभी हमारे घर से चली गई और हमें एक बड़ा सबक दे गई कि लोग वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।